ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਖੇਲ ਨਰਸਰੀ ਸਕੀਮ। ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਲ ਨਰਸਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਲ ਨਰਸਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਡੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਡੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਡੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਅਗਰ 20 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20 ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਤਾਂ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਡੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯਸ਼ਧੂਲ। ਯਸ਼ਧੂਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ। ਯਸ਼ਧੂਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯਸ਼ਧੂਲ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਯਸ਼ਧੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ICC ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ। ICC ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੇਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਕੌਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲਡਨ ਪੀਕੌਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ। ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
इस तो इलावा आप डिफरेंट मिनिस्टर्स के बारे डिस्कस किया होया। अगर पशुपति कुमार पारस की गल करते हैं तो फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने, पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने। हाजीपुर बिहार तो लोक सभा MP ने। किरण रिजिजू की अगर आप गल करिए तो किरण रिजिजू लवे दो इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ने, लॉ एंड जस्टिस इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इन्होंने लवे अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव, इन्होंने मिल के की करया इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर नानक राम गुड़ा हैदराबाद दे विच। ठीक है जी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि इंडिया के चीफ जस्टिस कौन ने। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन ने, तो NV रमाणा। जस्टिस NV रमाणा इंडिया के 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ने। ठीक है जी। इन्हों तो पहले 47वें नंबर के SA बोबड़े सीगे, इन्हों तो पहले 46वें नंबर के रंजन गंगोई सीगे और इन्हों तो पहले 45वें नंबर के दीपक मिश्रा सीगे। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। अच्छा, रिसेंटली अपने डिस्कस किया कि SA बोबड़े द्वारा एक बुक नू जारी किया गया, SA बोबड़े द्वारा एक बुक नू जारी किया गया। बुक का नाम सी जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। इस बुक नू लॉन्च किया गया SA बोबड़े द्वारा, लेकिन यह बुक किन्ना द्वारा लिखी गई सी या कहांगे किन्ना दी ऑटोबायोग्राफी सी, यह रंजन गंगोई दी ऑटोबायोग्राफी सी जस्टिस फॉर द जज। इस बुक नू रिसेंटली रिलीज किया गया सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक बनेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी केड़ी बनी है टू साइन UN सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। यूनाइटेड नेशंस द्वारा सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी केड़ी बनी सी, ये बनी सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। केड़ी कंपनी बनी सी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर किन्हों दिता गया पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स दे विच। बेसिकली पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंस किए गए और इस दे विच एक इंडियन नू बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर का सन्मान दिता गया। ठीक है जी। किन्हों दिता गया, अवनी लेखारा कल भी डिस्कस किया सी आपां ने कि शूटिंग तो बिलोंग करते हैं, 2 मैडल्स लेके आए सी टोक्यो पैरालंपिक्स दे विच। ठीक है जी। 2 मैडल, एक गोल्ड मैडल सीगा, दूसरा ब्रॉन्ज मैडल सीगा। ठीक है जी। गोल्ड मैडल इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल दे विच जित्तिया और ब्रॉन्ज मैडल 50 मीटर दे विच जित्तिया। इस तो इलावा गल करते हैं जयपुर राजस्थान तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नाम है, सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लिया। पैरालंपिक की गल करते हैं, टोटल 19 मैडल इंडिया लेके आया सी इस साल पैरालंपिक्स दे विच। इस तो इलावा अवनी लेखारा नू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। मिथाली राज नू भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। मिथाली राज क्रिकेटर ने, याद रखेंगे। लवलीना बोरगोहेन असम तो बिलोंग करते हैं और लवलीना बोरगोहेन किस खेल तो बिलोंग करते हैं, तो बॉक्सिंग तो। यह बेसिकली लेके आए सी ब्रॉन्ज मैडल किस दे विच, ओलंपिक्स दे विच। भवीना बैन पटेल की अगर आप गल करते हैं, यह टेबल टेनिस तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी मैडल जितया सी टोक्यो पैरालंपिक्स दे विच इन्हों द्वारा ब्रॉन्ज मैडल जितया गया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। द मॉन्क
हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ने जो यूपी के इन्हों के नाम के उत्ते या कह सकते हैं इन्हों की हिस्टरी के उत्ते एक बुक लिखी, किसने? शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता इस बुक के राइटर ने। ठीक है जी। शशि थरूर, शशि थरूर की रिसेंटली अपने बुक डिस्कस की थी, प्राइड प्रीजुडिस एंड प्यूरिटी। ठीक है जी। अमल कताकी की बुक रिसेंटली डिस्कस की थी ऑनकोलॉजी के रिलेटेड। अच्छा, कल के सैशन के भी आई थिंक यही बुक्स अपने रिवाइज करियां सी। तो अज के सैशन के इन्हों के बुक्स दे इन्होंने राइटर्स की बुक्स के नाम, इन्होंने राइटर्स की बुक्स के नाम कॉमेंट बॉक्स के दसोगे। ठीक है जी। रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगी है अपने किसी भी करंट अफेयर सैशन के लिए। अगर आप गल करते हैं करंट अफेयर्स को ट्रिक के नाल याद रखना अलग चीज़ है और किसी चीज़ को रिवाइज करके याद रखना अलग चीज़ है। रिवाइज करके याद रखांगे हमेशा के लिए याद रहेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ा ने इन्होंने रिवाइज करते रहा करो। नैक्सट चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। हु इज़ अपॉइंटेड एज डायरैक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के डायरैक्टर जनरल कौन बनाए गए ने? तो यह बनाए गए ने अरविंद कुमार। कौन बनाए गए ने? अरविंद कुमार बनाए गए। उसनू किम की गल करते हैं, उसनू किम होंडाई, होंडाई मोटर्स इंडिया के MD बनाए गए थे। कौन बनाए गए सी? उसनू किम। होंडाई कंपनी की गल करते हैं, साउथ कोरिया की कंपनी है। नैक्सट है केट ब्लैंचेट, केट ब्लैंचेट की गल करते हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एक्टर ने ये और इन्हों फ्रांस का ऑनर दिता गया सी, सिनेमा अवार्ड फ्रांस का सीजर डी ऑनर अवार्ड केट ब्लैंचेट ने जीते। सचिन तेंदुलकर रिसेंटली स्पाइनी के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी, स्पाइनी कंपनी के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च्ड पिंक फोर्स, हु हैज लॉन्च्ड पिंक फोर्स टू प्रिवेंट क्राइम्स अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन। केड़ी स्टेट ने पिंक फोर्स की शुरुआत की वूमेन एंड चिल्ड्रन की दे रिलेटेड क्राइम्स नूं रोकण दे लई? तो अपना आंसर रहेगा गोवा। गोवा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है जी। इसी तरीके नाल पिंक प्रोजेक्ट है जो एक किसने शुरू किया सी? एक केरला ने शुरू किया सी। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा आप तमिलनाडु रिलेटेड डिस्कस किया सी कि इन्होंने स्टेट सॉन्ग जारी किया तमिल थाई वाजीथू, समथिंग इस तरीके का सी, तमिल थाई वाजीथू स्टेट सॉन्ग तमिलनाडु का। ठीक है जी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखांगे, रिसेंटली चेंज होए सीगे। बिहार की गल करते हैं, बिहार दे विच अगर आप की डिस्कस करना हो रिसेंटली, अच्छा कमेंट बॉक्स में भी तुसी दसोगे कि रिसेंटली एक इंडेक्स जारी किया गया सी, एक इंडेक्स जारी किया गया सी जिस दे विच बिहार लास्ट नंबर पर सी। आप डिस्कस किया कि लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी दे विच, लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी दे विच केरला नूं स्मॉल स्टेट्स दे विच रखा गया। लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी दे विच वेस्ट बंगाल ने उस इंडेक्स नूं टॉप किया और बिहार की गल करते हैं तो बिहार लास्ट नंबर पर रहा सी। तो इस इंडेक्स का नाम दसना कि केड़ा ऐसा इंडेक्स सी जिस दे विच वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है और बिहार लास्ट नंबर पर है। 2 या 3 दिन पहले आपने डिस्कस किया सी। नागालैंड ने रिसेंटली 3 नवे जिले अनाउंस किए हैं तो 15 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं नागालैंड दे विच। नेक्स्ट है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड मोस्ट इंप्रूव्ड स्मॉल स्टेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के फील्ड के विच केड़ी स्टेट नूं मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट का दर्जा दिता है इंडिया टूडे ने? कमेंट बॉक्स के दसना। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं वन लाइनर्स रिवीजन के वाल। कुछ क्वेश्चंस नूं वन लाइनर फॉर्म के विच रिवाइज करांगे। स्टार्ट करते हैं सब तो पहले विच स्टेट वॉन्स हु हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन बास्केटबॉल वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्पेन दे विच ऑर्गेनाइज की गई चैंपियनशिप जिसनों सिल्वर मेडल किसी इंडियन परसन ने जीते तो किदांबी श्रीकांत ने इस दे विच सिल्वर मेडल जीते। किस तो हारे ने ये?
ਲੋਕੀਨ ਯੋ जो कि ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਮੇਲ ਸ਼ਟਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ। ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਮੈਡਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲਸ ਅਕੇਨ ਯਾਮਾਗੂਚੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਕੇਨ ਯਾਮਾਗੂਚੀ ਨੇ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਲਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ, यानी कि ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇसी ਦਿਨ ਪਾਏ ਡੇ ਵੀ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨੀਨਾ ਗੁप्ता ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2021 ਨੀਨਾ ਗੁप्ता ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਸਿਪਰਿਸ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਪਰਿਸ ਫਿਓਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਨਿਖਿਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। नेक्स्ट अक्षय कुमार एंड भूमि पेडनेकर। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर नूं पैटा दा मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सैलीब्रिटी नामित किया गया। पैटा द्वारा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पैटा की फुल फॉर्म पूछी गई है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सैलीब्रिटी ऑफ 2021 नामित किया गया है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर। ठीक है जी। नेक्स्ट ऋषभ पंत इज अपॉइंटेड एज एंबेसडर ऑफ उत्तराखंड। ऋषभ पंत नूं उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर नामित किया गया। ऋषभ पंत नूं उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर नामित किया गया। ठीक है जी, नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 2 हुण आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स के विच कि ऋषभ पंत सब तो पहले ICC के प्लेयर ऑफ मंथ नामित किए गए सी किहड़े मंथ के लिए। ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ किहड़े मंथ के लिए नामित किए गए सी ऋषभ पंत। ठीक है जी। दूसरा, वैसे उत्तराखंड के एंबेसडर ऋषभ पंत अपॉइंट किए गए, लेकिन कल्चर नूं प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड के विच एक होर परसन नूं एंबेसडर बनाया गया सी जो कि इंडियन आइडल के विनर भी सीगे, उन्हों का नाम भी कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसना। ठीक है जी। 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक ऋषभ पंत रिलेटेड, एक उत्तराखंड के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स से भी दसने। ठीक है जी। US ओपन 2021 चैंपियन रह चुके ईमा राडुकानू। इस साल जो टैनिस के ग्रैंड स्लैम्स होंगे, टैनिस के 4 इंपोर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स आप डिस्कस करते होंगे हैं, जिस ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और US ओपन है। US ओपन साल के आखिर के ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस साल का US ओपन वूमेन सिंगल्स टाइटल जितया सी ईमा राडुकानू जो कि ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, इन्हों BBC स्पोर्ट्स परसनैलिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया। इन्हों BBC स्पोर्ट्स परसनैलिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया। BBC द्वारा अलग अलग लोगों को अवार्ड दिते गए हैं। ठीक है जी। स्पोर्ट्स अवार्ड BBC दे, तो BBC के स्पोर्ट्स अवार्ड के जो सब तो इंपोर्टेंट अवार्ड अपने लिए रहेगा और रहेगा BBC स्पोर्ट्स परसनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। इसी दे नाल USA के जिमनैस्ट सिमोना बाइल्स नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया।
इसी दे नाल सिमोना बाइल्स नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है तुषार कपूर। तुषार कपूर हैज़ अनाउंस्ड हिज फर्स्ट बुक बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर। बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर, इस बुक के राइटर कौन ने? तुषार कपूर। तुषार कपूर इस बुक के राइटर ने। ठीक है जी, ये बुक जनवरी के रिलीज़ की जाएगी, अनाउंसमेंट की गई है। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, सिंपली पूछा जाएगा इस बुक के राइटर कौन ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा भी एक बुक नूं रिलीज़ किया गया। इस बुक नूं रिलीज़ किया गया है गजापति। गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम। गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम, इस बुक के राइटर कौन ने? इस बुक के राइटर ने अशोक बाल। अशोक बाल इस बुक के राइटर ने और इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। रिलीज़ किया गया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिसाइडेड टू डिप्लॉय। इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिसाइडेड टू डिप्लॉय फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन पंजाब सैक्टर। बेसिकली इस न्यूज़ में अगर आप डिस्कस करते हैं तो डिटेल में डिस्कस करांगे कि की होया कि इंडिया ने रशिया के नाल एग्रीमेंट साइन किया। तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए। S-400 मिसाइल सिस्टम है जो ये बेसिकली डिफेंस सिस्टम है जो कि अगर किसी भी दुश्मन का कोई जहाज वगैरह एंटर करता है तो उसनों 400 किलोमीटर तक 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। इस चार तरीके के अलग अलग सिस्टम ने, हालांकि यह अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा कि चार अलग अलग सिस्टम किस तरीके नाल काम करते हैं। एक 25 किलोमीटर से काम करता है, एक 100 किलोमीटर से काम करता है, एक 250 से काम करता है। अपने लिए सिंपली इंपॉर्टेंट बनेगा कि S-400 मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का मिसाइल सिस्टम है? रशिया का है। इंडिया ने इसनों बाय कराया सी तो पंज अलग अलग स्क्वाड्रन के फॉर्म के 5 अलग अलग वार इंडिया नूं ये दिते जाएंगे। तो जो पहला स्क्वाड्रन है, पहला जत्था है, ये कित्थे डिप्लॉय किया गया? पंजाब सैक्टर दे विच। यह पंजाब सैक्टर दे विच डिप्लॉय किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है DRDO। DRDO हैज़ कंडक्टेड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम की डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट की गई, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट की गई। ठीक है जी, किथे? आगरा यूपी दे विच। ये बेसिकली कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके की फूड डिलीवरी होगी या वैपन्स डिलीवरी होगी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस दे विच पहुँचाने के लिए कंट्रोल्ड एरिया डिलीवरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के कैट्स के नाम तो जानिया जाता है। और इसका टेस्ट किया गया आगरा यूपी दे विच। टेस्ट किया गया आगरा यूपी दे विच। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक चिली दे नवे प्रेजिडेंट नामित किए गए। चिली दे विच इलैक्शन कंडक्ट करवाए गए चिली दे विच। और कौन अपॉइंट किए गए ने प्रेजिडेंट? गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक बेसिकली यंगेस्ट एवर प्रेजिडेंट बनाए गए ने चिली दे। नेक्स्ट है कार्ल नेहामर। कार्ल नेहामर ने जो ये अपॉइंट किए गए ने चांसलर ऑस्ट्रिया दे। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है, करेंसी यूरो है। चिली की गल करते हैं, चिली कैपिटल सैंटियागो, करेंसी पीसो चलती है। चिली कैपिटल सैंटियागो, करेंसी पीसो चलती। और कार्ल नेहामर ने जो ऑस्ट्रिया के चांसलर बनाए गए, ऑस्ट्रिया के चांसलर बनाए गए ने किन्ना द्वारा? प्रेजिडेंट अलेक्जेंडर वैन डी बैलन द्वारा। इस तो इलावा रिसेंटली अपने जर्मनी के चांसलर डिस्कस किए, ओलाफ स्कॉल्स बनाए गए सी। एंजेला मार्कल को रिप्लेस करके ओलाफ स्कॉल्स जर्मनी के चांसलर बनाए गए सी। ठीक है जी।
नेक्स्ट, इंडिया हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद जर्मनी डेवलपमेंट बैंक। इंडिया ने जर्मनी डेवलपमेंट बैंक जिसनों KFW के नाम तो जानिया जाता है, इस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया सूरत मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, सूरत मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ऑफ 442.26 मिलियन यूरो का, 446.26 मिलियन यूरो का एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया सूरत मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, सूरत मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, गेल, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिस तरीके नाल सेल डिस्कस किया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी तरीके नाल गेल है जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने MOU साइन किया गुजरात दे नाल, MOU साइन किया गुजरात दे नाल टू सैटअप 500 KLD बाय एथेनॉल प्लांट इन गुजरात। गुजरात दे विच बायो इथेनॉल, गुजरात दे विच बायो इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है जी। 500 KLD का की मतलब है थे, इसका मतलब है कि 500 किलोलीटर पर डे, 500 किलोलीटर पर डे इस दे विच जनरेट की जाएगी। KLD का मतलब इतने किलोलीटर पर डे है, 500 किलोलीटर पर डे बायो एथेनॉल जनरेट की जाएगी गुजरात दे विच। इस प्लांट में लगाया जाएगा गेल द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी की गल करते हैं तो टाटा मोटर्स ने MOU साइन किया महाराष्ट्र के नाल, महाराष्ट्र के नाल कि यह बनाएंगे रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, जो व्हीकल स्क्रैपिंग है इसनों करन दे लई, इसनों ईजी बनाने दे लई एक फैसिलिटी बनाई जाएगी, एक सेंटर बनाया जाएगा रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। कित्थे बनाई जाएगी? महाराष्ट्र दे विच। किहड़ी कंपनी द्वारा? टाटा मोटर्स द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर एक एप्लीकेशन है, ज़्यादातर लोगों के मोबाइल फोन के विच इंस्टॉल्ड है, तुसीं देखी होएगी। इस दे अकॉर्डिंग इसने एक रैंकिंग जारी की, इस दे अकॉर्डिंग इंडिया चौथे नंबर पर है इन मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय स्पैम कॉल्स। जो स्पैम कॉल्स आंदियां ने, स्पैम कॉल्स दे विच इंडिया चौथी मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। ठीक है जी। सब तो ज़्यादा स्पैम कॉल्स ब्राज़ील दे विच ने, दूसरे नंबर पर पेरू है और थर्ड नंबर पर यूक्रेन रहे, थर्ड नंबर पर यूक्रेन रहे। ठीक है जी। अच्छा, ट्रू कॉलर की गल करते हैं। ट्रू कॉलर 2009 दे विच बनाई गई एप्लीकेशन है जिसका हैडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन दे विच है, स्टॉकहोम स्वीडन दे विच। ट्रू कॉलर जो कंपनी है इसका हैडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन दे विच है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 485 पार्टिसिपेंट्स, 485 पार्टिसिपेंट्स टू परफॉर्म इन रिपब्लिक डे परेड अंडर वंदे भारत नृत्य उत्सव। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वंदे भारत नृत्य उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो रिपब्लिक डे की परेड है उस दे विच वंदे भारत नृत्य उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस दे विच 485 लोगों की टीम नूं सिलेक्ट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा रिपब्लिक डे के रिलेटेड आप भी डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि 5 ने, इसका नाम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ ने, ये जो कंट्रीज़ ने इन्हां दे जो हैड ने, इन्हां दे जो हैड ने ये विजिट करनगे, इन्हां दे हैड रिपब्लिक डे परेड के गेस्ट होंगे। ठीक है जी। केड़ी कंट्रीज़? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये पंजों कंट्रीज़ के हैड इंडिया की रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बन गए। नेक्स्ट है यूपी, यूपी गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स टू 1 करोड़ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यूपी सरकार ने अनाउंस किया कि वह फ्री स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स प्रोवाइड कराएगी 1 करोड़ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। ठीक है जी। यूपी सरकार 1 करोड़ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नूं फ्री स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स प्रोवाइड करवाएगी। कर्नाटका,
कर्नाटका सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल बनाया, एंटी कन्वर्जन बिल प्रिपेयर किया है टू स्टॉप फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। बेसिकली अगर रिलीजनस की गल करते हैं तो इंडिया के विच की हो रहा है कि लोगों के जो रिलीजनस ने उन्होंने फोर्सफुली चेंज करवाया जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी की साखी हर एक ने सुनी होएगी, जिस दे विच कहा गया सी कि गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी सी किस दे लई, कश्मीरी पंडित्स नूं बचाउण दे लई, कश्मीरी पंडित्स नूं बचाउण दे लई, ताकि उन्हां दा जो धर्म चेंज करवाया जा रहा सी, धर्म चेंज करवाया जा रहा सी, उसनूं रोकिया जा सके। ठीक है, तो उसी चीज़ के उत्ते अगर आप गल करते हैं रिलीजन चेंज की, फोर्सफुली कन्वर्जन की, इस दे उत्ते ड्राफ्ट बनाया, इस दे उत्ते बिल तैयार किया किहड़ी सरकार ने, कर्नाटका ने। ठीक है जी, और सिमिलर तरीके का लॉ यूपी दे विच, MP दे विच, हरियाणा और गुजरात दे विच भी बनाया जा चुका है। ठीक है जी, यानी कि कर्नाटका ऐसी 5वीं स्टेट बन गई है इंडिया की। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं आर्टिकल्स की, तो फंडामेंटल राइट्स दे विच एक इंपोर्टेंट राइट है राइट टू रिलीजन। जो रिलीजन के रिलेटेड राइट्स ने उन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 तो लैके 28 तक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 तो लैके 28 ने, जिस दे विच जो आर्टिकल 25 है यह आपां राइट दिंदा है कन्वर्ट करन दा, अपना किसी भी तरीके का रिलीजन चेंज करने की राइट दिंदा है आर्टिकल 25। लेकिन फोर्सफुली चेंज करवाना गलत है, तो फोर्सफुली चेंज अगेंस्ट इस बिल नूं बनाया गया। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा ऋषिहुड यूनीवर्सिटी नूं इनॉग्रेट किया गया है विज्ञान भवन दिल्ली दे विच, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली दे विच ऋषिहुड यूनीवर्सिटी नूं बनाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है मोरमुगाओ। कुछ दिन पहले सानू याद हो, अगर आप एक न्यूज़ डिस्कस की सी, जिस दे विच कहा गया सी कि 4 इंपोर्टेंट शिप्स आप डिस्कस किए सी कि 4 इंपोर्टेंट शिप्स 4 अलग अलग सिटीज़ के नाम के उत्ते बनाए जा रहे हैं, 4 अलग अलग सिटीज़ के नाम के उत्ते बनाए जा रहे हैं, जिस दे लई एग्रीमेंट साइन किया गया सी मैजागॉन डॉक लिमिटेड के नाल, मैजागॉन डॉक लिमिटेड के नाल। ठीक है जी, जिस दे विचों पहला शिप रिसेंटली कमीशन कर लिया गया सी विशाखापट्टनम, पहला शिप इत्थे लिखा भी होगा रिसेंटली फर्स्ट नेम्ड विशाखापट्टनम वाज डिलीवर्ड। ठीक है जी, विशाखापट्टनम पहला शिप बनया। दूसरे शिप के सी ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, दूसरे शिप के सी ट्रायल्स शुरू हुए हैं। दूसरे शिप का नाम है मोरमुगाओ इंडियन नेवी का दूसरा इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर शिप है P-15B क्लास का, जिसनों कमीशन किया जाएगा 2022 दे विच, और इसनों की किया गया सी ट्रायल्स की इसकी शुरुआत की गई। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी 2 जिसका नाम इंफॉल और सूरत होएगा, जो कि इंफॉल और सूरत के नाम तो जाने जाएंगे, इन्हों भी जल्दी ही बनाया जाएगा मैजागॉन डॉक लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट प्रसार भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 बनाई गई सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है, और शशि शेखर वेम्पति रिसेंटली इसके हैड बनाए गए सी शशि शेखर वेम्पति। इसने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के नाल ICCR के नाल, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के नाल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका हैडकुआटर दिल्ली के विच है, जो कि 1950 के विच बनाई गई सी, और विनय सहस्त्रबुद्धे इसके प्रेसिडेंट ने। दोनों ने MOU साइन किया फॉर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर नूं प्रमोट करने के लिए प्रसार भारती और ICCR दे विच एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है जी, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हैडकुआटर पूछे जा सकते हैं, दोनों के फाउंडेशन ईयर पूछे जा सकते हैं, और दोनों के हैड का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रदीप रावत इज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू चाइना। इंडिया के एनवॉय कौन बनाए गए हैं? प्रदीप रावत। कित्थे दे लई? चाइना दे लई इंडिया के एंबेसडर बनाए गए हैं प्रदीप रावत बाय रिप्लेसिंग विक्रम मिश्री नूं रिप्लेस करके। प्रदीप रावत करंटली नीदरलैंड के आई थिंक एंबेसडर ने, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। चाइना अपनी नेबरिंग कंट्री है, इस करके इसके एनवॉय अपने लिए इंपॉर्टेंट बननगे प्रदीप रावत। नेक्स्ट है
उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रिलेटेड पहले एक न्यूज़ डिस्कस की, इन्होंने बुक रिलीज़ की है। और दूसरा इन्होंने इनोग्रेट किया स्टेट का उड़ीसा का सब तो लॉन्गेस्ट ब्रिज, उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि 3.4 किलोमीटर का है, महानदी रिवर के उत्ते, महानदी रिवर के उत्ते इसनूं इनोग्रेट किया गया, बनाया गया है गोपीनाथपुर कटक दे विच। नैक्सट है अ 3 डे इंटरनेशनल हनी बी फैसटिवल, 3 दिन का इंटरनेशनल हनी बी फैसटिवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया, हल्द्वानी उत्तराखंड दे विच, हल्द्वानी उत्तराखंड दे विच इंटरनेशनल हनी बी फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। नैक्सट है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी अनाउंस की है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी सैटअप की जाएगी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी को सैटअप करेगा। ठीक है जी, इसकी अनाउंसमेंट की गई है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा। ठीक है जी, अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा, लाइक एंड शेयर सैशन जरूर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।